Good morning, good afternoon and good evening प्यारे बच्चों. In this lecture, we will be concentrating in measurement of current using a moving coil galvanometer. It's fine. Now, if we concentrate in the basic fundamental behind this moving coil galvanometer, the concept behind its development is whenever a current carrying coil is placed in external magnetic field, it feels a torque. Okay, let us see how. As we know from previous exposure, we have external field. This is a rectangular coil of area A having n number of turns is placed in external magnetic field, making an angle theta. This is the direction of B basically, okay, and this is direction of I, and making an angle theta, okay, with the magnetic. You know this thing, a torque acts on the coil, and the torque acting is equal to N I D A cos of theta, where theta is angle between magnetic field and plane of the coil. This is the basic concept behind moving coil. It's okay. How the things happen. डिफ्लेक्शन कैसे बनता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, है ना? डिफ्लेक्शन बनेगा तभी तो हम मेजर कर रहे हैं हाउ द डिफ्लेक्शन फिजिकल, ठीक है ना, इज क्रिएटेड. देखो करंट टॉ, दिस टॉ इज इक्वल टू NIBA. टॉ इज इक्वल टू NIBA cos of theta. This torque produced in the coil depends on current. Okay, torque is directly proportional to current. Torque is directly proportional to current when N, B, A and theta, these all are constant. Now, as much torque will be produced in the coil, what will be happening? The deflection produced in the coil is directly proportional to torque. Torque, rotational force. As much rotational force will be acting, as much deflection will be produced. ठीक है, मतलब as much current, as much torque, as much torque, as much deflection. Meaning, deflection produced in the galvanometer will be directly proportional to current passing through the coil. It's okay. Now on this line, okay, we will be continuing with the discussion of moving coil galvanometer. अगर बिल्कुल सीधी बात, this is the situation behind moving coil. अगर आपको ये समझ में आ गया तो you will be able to understand the moving coil. Now, when writing this, I said N, B, A and theta. ठीक है. N number of turns तो ठीक है, constant रहेंगी coil में. External magnetic field, we will be having constant external magnetic field by having poles of specific strength, magnetic poles. Area of the coil we will be able to fix, but how to fix theta? How to fix theta? This is the question. और टेंडेंसी क्या रहेगी थीटा को फिक्स करते हुए? ओके, टेंडेंसी ये रहेगा कि whatever current we are applying to the coil for the measurement, that current should be producing maximum torque, because that maximum torque will be producing maximum deflection. Mean even small change in current, even small value of current should be able to produce a big deflection.
for the easy measurement. Okay, so for that we need to have maximum torque produced by this current in the coil. Now, उस सिचुएशन के अंदर अगर हम इस थीटा को फिक्स करें, थीटा को कांस्टेंट बनाएं, तो थीटा देखो किस तरह से कांस्टेंट बनाया, मेकिंग थीटा कांस्टेंट so that current is able to produce maximum torque. Okay, for this situation radial magnetic field solve. Okay, कैसे? अब आप सोच रहे होंगे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कैसे? टू प्रोड्यूस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड we take two concave pole pieces. One is north, another one is south. And these north and south pole pieces, they produce radial field like this. देखो इसको रेडियल क्यों कहा? रेडियल इसको इसलिए कहा, ये अगर मैं सर्कुलर एज्यूम कर रहा हूं तो यहाँ पे रेडियस की तरह बिहेव कर रही है. सेंटर इज लाइंग समवेयर हियर. रेडियल फील्ड. ओके, रेडियल फील्ड का एक कैरेक्टराइजेशन है. टॉप व्यू दिखा रहा हूं बेटा. मतलब ये जो पोल्स हैं दे आर लाइक दिस. यहां पे ये ऐसे है, ऐसे कनकेव, ये स्पेस बिटवीन. ओके, दूसरा पीस कनकेव लाइक दिस, बीच में ये स्पेस है, यहां पे हम कॉइल प्लेस करें. ठीक है. नाउ हाउ बेसिकली द थिंग्स. ओके, अब कॉइल होता कैसे है? जब हम इस रेडियल फील्ड के अंदर कॉइल रखेंगे ना, देखो ये कॉइल इज लाइक दिस. ध्यान से देखो, कॉइल एट एवरी ओरिएंटेशन. कॉइल इस प्लेन में रखा मैंने लाइक दिस. किसी भी ओरिएंटेशन पे कॉइल को ले लो, दैट इज पैरेलल टू मैग्नेट. ओके, ध्यान से देखो. ओके, पैरेलल टू मैग्नेट. एवरी कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी लोकेशन दैट इज पैरेलल. ओके, ओके. So this is the factor. This is the thing which help us to have maximum value of cos theta, first thing. And this is the thing that is radial field. Presence of radial field हमें थीटा फिक्स करने में भी हेल्प करता है. बिकॉज होता क्या है, what I said, जब हम इसके बीच में कॉइल रखते हैं, देखो ध्यान से, ये स्पेस ऐसे, इसमें कॉइल ऐसे रखा जाता है टॉप में, ये समथिंग लाइक दिस, ऐसे ऐसे ऐसे. ये एक्सिस होता है, दिस इज द एक्सिस. ये अगर मैं सिलेंडर एज्यूम कर लूं, इसके बीच का जो स्पेस है, उसका सिलेंडर का जो एक्सिस होगा ना, दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन फॉर द कॉइल. फाइन, ठीक है. और उस ओरिएंटेशन में जब अपना कॉइल घूमता है, व्हेन द कॉइल रोटेट बिटवीन द पोल पीसेस, कॉइल कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी ओरिएंटेशन, मतलब जहां भी जाए, जहां भी, एवरी ओरिएंटेशन दैट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक लाइन. पैरेलल टू द मैग्नेटिक लाइन. ओके, देखो समथिंग लाइक, ये कॉइल यहां पे है पैरेलल, कॉइल यहां पे है पैरेलल, कॉइल यहां पे है पैरेलल. एवरी ओरिएंटेशन द कॉइल इज पैरेलल, पैरेलल, पैरेलल. इट्स ओके. The coil is parallel corresponding to every orientation. और अगर plane of the coil is parallel to magnetic field, तो थीटा कितना हो गया? Theta is equal to 0 degree. Okay, and that 0 degree fine helps us in giving maximum value for cos theta. Cos 0 is equal to 1, and this is maximum. Or if this is maximum, okay, cos theta is contributing maximum, fine, then क्या होगा? Tau, which is equal to NIBA. Cos का maximum value आ रहा है, तो torque which we will be getting, that will be equal to torque maximum for any current. Mean क्या benefit हुआ radial field का? Radial field is taking us to a situation. रेडियल फील्ड जो है दैट इज टेकिंग अस टू अ काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर वी आर एबल टू फिक्स द एंगल, फर्स्ट थिंग. ठीक है. एंड द अदर थिंग, वी आर एबल टू फिक्स द एंगल इन सच अ वे
in such a way कि torque which we are getting corresponding to any current, that torque is maximum. आराम से इसको पॉज करके देखो. This is your field. Okay, this is the scenario of the radial magnetic field. ठीक. तो when we have radial magnetic field, तो torque produced in the coil क्या बनेगा? NIBA cos of 0 degree. Mean torque will be equal to NIBA. Very first thing. Torque acting will be this much. Second thing, whatever value of torque will be acting corresponding to this value of current. Okay. Cos 0 because maximum value yield करता है. Cos 0 is equal to 1. Okay. That torque which will be produced corresponding to this value of current when we are using radial field, that torque will be equal to torque maximum. Torque maximum mean the current applied, current passing through the coil is able to produce maximum torque when radial field is used. It's okay? मतलब मैक्सिमम टॉर्क लगेगा तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमें मिलेगा. ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू क्रिएट द फ्रंट व्यू. ओके, अब मैं फ्रंट व्यू इसका बनाने की कोशिश करता हूं. फ्रंट व्यू में क्या होगा? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में व्हाट ऑल विल बी देयर. कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बात करेंगे. ठीक है. The very first thing which we need to have external magnetic field. External magnetic field. ये दो magnetic poles हैं हमारे पास. One is north, another one is south. क्योंकि सामने से देखने पे तो प्लेन ही नजर आएंगे ना. टॉप व्यू से देखेंगे तो टॉप व्यू से ये कनकेव नजर आएंगे. This is your south pole. ये फ्रंट व्यू है इसका. अगर आप टॉप व्यू इसका देख रहे हो then top view will be something like this. It's okay. Radial field will be making. Now, this is north and south producing radial field between. तो ये आपका पर्पस सॉल्व कर दिया इसने मैग्नेटिक फील्ड. नाउ रेक्टेंगुलर कॉइल, ये वाला रेक्टेंगुलर कॉइल हैविंग n टर्न्स. रेक्टेंगुलर कॉइल जिसको हम करंट अप्लाई करेंगे, है ना. इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं. कितने? n नंबर ऑफ टर्न्स हैं. ठीक है. ओके, एक सिलिंड्रिकल कोर इसके अंदर रखा है, मेड ऑफ हाईली परमिएबल मटेरियल. ये दो काम करता है. एक तो ये कॉइल जो हमने n टर्न्स वाला बनाया इसके लिए सपोर्ट होता है. ओके, दिस इज योर कोर, हाईली परमिएबल कोर made of highly permeable material. Okay, core made of highly permeable material. ठीक है. One thing, it act as a support for the coil. दूसरा देखो, अगर यहां पे ये कोर है तो रेडियल फील्ड में ये कोर टॉप व्यू से अगर देखूं कहां पे होगा? टॉप व्यू से it will be somewhere here. तो हाईली परमिएबल मटेरियल्स का एक प्रॉपर्टी होता है क्या कि मैग्नेटिक लाइंस को वो कंसंट्रेट कर देते हैं. ठीक है ना. मैग्नेटिक लाइंस हाईली परमिएबल मटेरियल में से पास करते हैं. मतलब आफ्टर प्लेसिंग दिस कोर एट द सेंटर ऑफ द सेंटर एक्सिस, ये जो कॉइल का एक्सिस है ना उसके अलाउंग हमने रखा है. जो रेडियल फील्ड है आपकी उसका रेडियल नेचर विल इंप्रूव. उसका रेडियल नेचर विल इंप्रूव. तो हाईली परमिएबल कोर रखने का बेनिफिट. ओके, ठीक. हाईली परमिएबल कोर इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द, मतलब इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि इस हाईली परमिएबल कोर के ऊपर ये जो आपकी कॉइल है इसको बाइंड किया गया.
हाईली परमिएबल, दिस कोर इज मेड अप ऑफ हाईली परमिएबल मटेरियल। ठीक है, इट्स ओके। नाउ अब इस कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स आर देयर, ठीक है, n नंबर ऑफ टर्न्स आर देयर, ओके। अब टर्न्स इसके ऊपर बाइंड की गई हैं, टर्न्स आर बाइंडेड इन सच अ वे कि जो कॉइल के दो एंड्स हैं, एक में से करंट एंटर करे और दूसरे में से लीव कर जाए, ठीक है। वन एंड वी टेक एट द डाउन साइड, अनदर एंड हम यहां पे अप साइड पे निकालें, ठीक। एक साइड से करंट एंटर करेगा और दूसरे साइड से हम उसको लीव करवाएंगे, ठीक है। अब सिस्टम हैज टू बी मेड रिस्टोरिंग, मतलब जब मेजरमेंट हो गया, अब देखो करंट लगाया, टॉर्क बनी, टॉर्क बनने से डिफ्लेक्शन बना, डिफ्लेक्शन बना, रीडिंग मिल गया। जब आप वो करंट हटाओ, ओके, जो निडल है आपकी दैट शुड बी गोइंग टू जीरो अगेन, दोबारा से जीरो पे जाना चाहिए ना, फॉर इट शुड बी रेडी इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम फॉर अनदर मेजरमेंट। थोड़े से टाइम में अगले मेजरमेंट के लिए डिवाइस रेडी होना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सिस्टम को रिस्टोरिंग बनाना। सिस्टम को रिस्टोरिंग बनाने के लिए व्हाट वी डू, वी टेक अ स्ट्रिप, और उस स्ट्रिप को हम ज्वाइन करते हैं इस अपर एंड ऑफ कॉइल के साथ। ये जो कॉइल का अपर एंड निकाला ना, ये स्ट्रिप यहां पे लगा दिया। इस स्ट्रिप का कुछ पार्ट इज फिक्स्ड इन द कॉइल, कॉइल के अंदर थोड़ा सा फिक्स होता है, ओके, और ये जो अपर पार्ट होता है ये कैबिनेट के साथ जुड़ा है। कैबिनेट के अंदर जो कैबिनेट है ना आपका, जिसके अंदर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज फिक्स, उसके बॉडी के अंदर फिक्स होता है। और ये जो स्ट्रिप है, दिस इज मेड ऑफ पर्टिकुलर मटेरियल, ऐसा नहीं कि कुछ भी यूज कर लें। द स्ट्रिप इज मेड ऑफ फॉस्फोरस एंड ब्रॉन्ज एलॉय, फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप कहते हैं इसको। नाउ सी, फॉस्फोर ब्रॉन्ज और क्वार्ट्ज मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग दिस स्ट्रिप, ठीक है। और ये जो स्ट्रिप है, लेट द रिस्टोरिंग कांस्टेंट इज। अब आप यहां पे क्वेश्चन कर सकते हो कि सर आपने यही मटेरियल क्यों चूज किया? कोई भी मटेरियल कंडक्टिंग हमारा पर्पस रिजॉल्व कर सकता है, करंट फ्लो करवाना है, ठीक है ना, ओके, करंट फ्लो ही करवाना है हमें। व्हाट वी आर डूइंग, हम उसको अपर एंड के साथ ज्वाइन करें ताकि, ठीक है, एक टर्मिनल बना सके। तो कंडक्टिव स्ट्रिप कोई भी काम चला देगी, किसी सॉफ्ट मटेरियल की भी हो सकती है, बट आंसर इज नो। देखो ध्यान से, हमने सबसे पहली बात है कि स्ट्रिप ही क्यों चूज की। सी व्हाई वी हैव टेकन स्ट्रिप ओनली। यहां पे एक वायर भी लगा सकते हो, ध्यान देना। दिस इज अ स्केल, स्ट्रिप टाइप। यू डू वन थिंग, इसको एक हाथ में होल्ड करो, hold it in one hand, fix it and rotate from the other side, ठीक है। रोटेट कर रहे हैं, what is happening? ये रोटेशन कौन करेगा? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के सिचुएशन में करंट विल बी प्रोड्यूसिंग टॉर्क इन द कॉइल। तो ये वाला जो एंड है, इसका कुछ पार्ट इज फिक्स्ड इन द कॉइल एज द कॉइल विल रोटेट, ठीक है। ये स्ट्रिप का लोअर पोर्शन रोटेट करेगा। ध्यान देना, when you are rotating this end of the scale, keeping it fixed, okay, ये आपके हाथ के ऊपर, you are rotating it like this, ऐसे रोटेट कर रहे हो, ठीक है, ओके। If you are rotating it clockwise, देखो ध्यान से, clockwise तो एंटी क्लॉकवाइज, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ओके, ऑपोजिट डायरेक्शन में ये आपके हैंड के ऊपर फोर्स लगा रहा है। यू रोटेटेड दिस साइड, तो आपके दिस साइड, फाइन, आपके हैंड के ऊपर फोर्स लगेगा उल्टा, आपके हैंड के ऊपर, क्योंकि रोटेशन है तो टॉर्क लगेगा। तो दिस टॉर्क बेसिकली जो प्ले में आ रहा है, ये किस पर्पस के लिए आ रहा है? एक्सटर्नल टॉर्क जो करंट ने बनाया वो इसको रोटेट कर रहा है। उसके रिस्पॉन्स में जैसे जैसे इसमें रोटेशन हो रहा है, इसका शेप डिफॉर्म हो रहा है, ठीक है ना, तो इलास्टिसिटी के कारण, ओके, इसके अंदर रिस्टोरिंग टॉर्क बन रहा है, ठीक है। और ये रिस्टोरिंग टॉर्क जब तक करंट इज देयर, जब तक करंट लगा हुआ है, करंट के कारण टॉर्क बनेगा, टॉर्क के रिस्पॉन्स में रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा। जहां एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड जो करंट ने बनाई है और रिस्टोरिंग टॉर्क दोनों बराबर हो जाएंगे, उस पर्टिकुलर डिफ्लेक्शन के ऊपर
आपका गैल्वेनोमीटर स्टेबलाइज कर देगा और वो डिफ्लेक्शन शो कर देगा। जैसे ही आप करंट हटाओगे, ठीक है, जो टॉर्क बाय द करंट थी वो खत्म और रिस्टोरिंग टॉर्क उसको रिस्टोर करके दोबारा से भी आएगी। अब यहाँ पे आ गया कि नहीं, जीरो पोजीशन, देखो जीरो पोजीशन पे आ गया। तो रिस्टोरिंग टॉर्क का ये बेनिफिट है। दिस स्ट्रिप इज installed in the system to make the system restore. Okay, hope you have understood. And particularly we have used the phosphor bronze or quartz material, fine, to have particular value of K. देखो ध्यान से, अगर K का वैल्यू बहुत कम होगा, it means this strip जो है बहुत सॉफ्ट होगा, और स्ट्रिप अगर सॉफ्ट हुआ तो ये डिवाइस बहुत धीरे 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 रिस्टोर करेगा, फाइन। और अगर के का वैल्यू ज्यादा कर दिया, स्ट्रिप हार्ड ले लिया, ठीक है, द स्ट्रिप विल बी हार्ड, ओके, के का वैल्यू विल बी मोर, के विल बी मोर, तो ये बहुत फास्ट, ठीक है, रिस्टोर करेगा। बट उसका एक डिसएडवांटेज हो जाएगा कि जब आप करंट बनाओगे उसके अंदर, करंट बनाने के कारण उसके अंदर जो रिस्टोरिंग टॉर्क बनेगी, थोड़े से डिफ्लेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंगली रिस्टोरिंग टॉर्क बहुत ज्यादा बन जाएगी, ठीक है, और इवन कॉरस्पॉन्डिंग टू बिगर वैल्यू ऑफ करंट, जो उसके अंदर डिफ्लेक्शन बनेगा, दैट विल बी वेरी मच स्मॉल, ठीक है। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ के इज चोजन वेरी इंटेलिजेंट। वी डोंट कीप इट वेरी लेस and we don't have this value of K. Fine, we don't use that material which have a value of K very large. एक appropriate value of K is used. इस कारण से हमने select किया phosphor bronze material for making the strip or quartz material. It's okay. तो strip हमने इस system में क्यों लगाया? For making the सिस्टम रिस्टोरिंग, ये कॉइल रिस्टोरिंग सिस्टम, ठीक है बेटा। दिस एंड ऑफ द स्ट्रिप इज सोल्डर्ड। ये जो एंड था ना कॉइल का, कॉइल के एंड के साथ ये स्ट्रिप का एंड इसके बीच में थोड़ा सा, ठीक है ना, पुश करके उसके साथ सोल्डर कर दिया जाता है और द बेटर कंडक्टिव करता है। और अपर एंड ऑफ द स्ट्रिप इज फिक्स्ड इन द कैबिनेट। ध्यान देंगे, कैबिनेट इन जनरल इज मेड ऑफ अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। कैबिनेट मतलब बॉक्स, तो जो आपका अपर एंड ऑफ द स्ट्रिप है वो यहां पे फिक्स कर दिया, ठीक है। यहां पे जो अपना ये दोनों का जॉइंट है, यहां एक मिरर लगा, मिरर, it's okay. Why this mirror is used now? देखो ध्यान से, mirror why we have used, okay, suppose we have this as mirror, यही है, चलो ठीक है, it's okay, ये mirror है हमारे पास, ठीक। what we are doing, सामने से एक लाइट लगाया, कॉलीमेटेड बीम, कॉलीमेटेड मतलब फोकस्ड बीम इसके ऊपर फॉल करवाते हैं, ठीक, इन सच अ वे कि वो जो बीम है इसके नॉर्मली फॉल करे, ये मिरर के नॉर्मली फॉल करे, ओके। तो व्हेन इट विल बी, द बीम विल बी फॉलिंग नॉर्मली ऑन दिस पर्टिकुलर मिरर, तो क्या होगा, आया और रिट्रेस करेगी अपना पाथ, मतलब जो वॉल है सामने, ठीक है, जहां पे हमने रीडिंग लेना है, डॉट का पोजीशन, एक डॉट बनेगा ऑन द बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन, यहां से बीम आया और बिल्कुल सामने वॉल पे, ठीक है, एक डॉट बनेगा। कोई भी वॉल हम मार्क कर लेते हैं और वॉल का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर मेजर कर लेते हैं, ठीक। अब एज द करंट इज अप्लाइड टू द कॉइल, ये कॉइल है अपनी, कॉइल ये रहा, कॉइल के ऊपर मिरर लगा हुआ है, ठीक है ना, तो क्या होगा, एज द करंट विल बी अप्लाइड द कॉइल विल रोटेट, एज द कॉइल विल रोटेट मिरर विल रोटेट। देखो मिरर रोटेट करेगा बट विल बी हैपनिंग। अगर लाइट इधर से आ रहा, नॉर्मली इधर से आ रहा था, ओके, लाइक दिस, तो कहां जाएगा, लाइट विल बी गोइंग दिस वे। पहले क्या था, पहले जब मिरर हमारा नॉर्मल लाइट, नॉर्मल व्यू में था, सी समथिंग लाइक दिस, यहां से ये मिरर,
व्हेन द मिरर इज लाइक दिस, नॉर्मल बीम आ रहा है तो वो नॉर्मली ही अपना पाथ रिट्रेस करेगा, यस, बट व्हेन द मिरर विल बी रोटेटिंग, अब सिचुएशन विल डिफर। यहां से बीम आ रहा था, ओके, कहां जाएगा बीम? बीम विल बी गोइंग ये, ओके, समझ में आया? ओके, नाउ इफ मिरर विल रोटेट बाय थीटा, द बीम विल रोटेट बाय एंगल 2 थीटा। समझ में आया? फिर वॉल के ऊपर जो जिस वॉल का डिस्टेंस हमने लिया हुआ है उस वॉल के ऊपर, जो भी वॉल, ये वॉल है सामने, इस वॉल के ऊपर जहां भी डॉट बनता है, इस इनिशियल पोजीशन से उस डॉट का डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। ये वाला डिस्टेंस ऑलरेडी मेजर्ड है। फिर tan थीटा की फॉर्म में वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा, दैट इज डिफ्लेक्शन, tan phi। डिफ्लेक्शन मेन जो एम है, टू फाइंड द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल इन अ एक्सीलरेटर। आजकल तो बहुत बढ़िया काम है, ठीक है ना, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अपसाइड पे जो ये कॉइल है, कॉइल के ऊपर निडल लगा दी जाती है, ओके, और निडल जो है दैट इज फ्री टू रोटेट ऑन अ डिस्प्ले, ठीक है। तो जब वो निडल डिस्प्ले के ऊपर इस तरह से रोटेट करती है तो दैट गिव्स प्रॉपर रीडिंग। समझ में आया? मिरर किस लिए लगाया? टू हैव एक्यूरेट वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्शन। इट्स क्लियर? ठीक है बेटा। नाउ सी, अब एक्सिस फॉर रोटेशन, ये जो हमारा कॉइल है इसके रोटेशन के लिए एक्सिस बनाने के लिए क्या करते हैं, लोअर एंड, ये जो लोअर एंड है ना, लोअर एंड में इस तरह से इसको कर्ल करके स्प्रिंग टाइप, ताकि फ्री रोटेशन हो सके, यहां पे इसको फिक्स कर देते हैं। अब ये वाला एक्सिस फिक्स हो गया, इसके अराउंड आपका कॉइल इज फ्री टू रोटेट। जिस हिसाब से टॉर्क बनेगा उस हिसाब से इसमें डिफ्लेक्शन आएगा, और डिफ्लेक्शन आएगा देन डिफ्लेक्शन आप मेजर कर लोगे। करंट विल बी प्रोड्यूसिंग टॉर्क, टॉर्क विल बी प्रोड्यूसिंग डिफ्लेक्शन, ठीक है। डिफ्लेक्शन जब इसमें प्रोड्यूस होगा, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा तो ये फॉस्फोड्रॉन स्ट्रिप जो है, ओके, इसमें डिफॉर्मेशन आएगा। जब इसमें डिफॉर्मेशन आएगा तो इसके अंदर रिस्टोरिंग टॉर्क बनेगा इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जब ये टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द करंट एंड रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रिप एज पर द वैल्यू ऑफ ट्विस्ट इन दैट, ओके, जब ये दोनों बराबर कर जाएंगे उस पर्टिकुलर एंगल के ऊपर डिफ्लेक्शन इसका फिक्स हो जाएगा, और वो डिफ्लेक्शन आप मेजर कर लोगे। यस, नाउ जो दोनों एंड्स ऑफ द कॉइल हैं वो देखो आप कहां पे, ध्यान देने वाली बात है। वन एंड ऑफ द कॉइल इज देयर, तो इसको कंडक्टिव वायर लगा के साथ साथ अंदर ये कैबिनेट में टर्मिनल बना दिया एक, दिस इज मेकिंग टर्मिनल T1, इट्स ओके। दूसरा टर्मिनल यहां से बनेगा, वायर अटैच किया और इसको ज्वाइन करके यहां से यहां करके यहां पे ले आया, दैट इज मेकिंग सेकेंड टर्मिनल ऑफ द गैल्वेनोमीटर T2, इट्स ओके, सेकेंड टर्मिनल ऑफ द गैल्वेनोमीटर। इसको यहां से कनेक्शन करके यहां जोड़ना है, सी कुछ ऐसा, ठीक है बेटा। नाउ T1 T2 के अक्रॉस करंट अप्लाई करो, करंट अप्लाई किया, करंट कॉइल एंटर करेगा, ठीक है, एज पर द वैल्यू ऑफ करंट, एज पर द वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है, इसके अंदर क्या बनेगा, torque will be produced by the current which is applied. That torque क्या करेगा, कॉइल को रोटेट करेगा, कॉइल रोटेट होगा तो स्ट्रिप विल बी रोटेट। स्ट्रिप में रोटेशन होने के कारण, डिफॉर्मेशन होने के कारण, ठीक है, उसमें रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा। तो जहां भी ये दोनों टॉर्क प्रोड्यूस बाय द करंट और रिस्टोरिंग टॉर्क बैलेंस करेंगे, उस डिफ्लेक्शन के ऊपर गैल्वेनोमीटर आपका जाके गैल्वेनोमीटर कॉइल स्टेबलाइज हो जाएगा, दैट विल बी द deflection corresponding to the current, और using that particular deflection आप करंट को मेजर कर सकते हो। Now galvanometer is made, I told you every part, why that part is used, this is the simplest way of, okay। अब इसको मैं how you have to attempt this, अगर इसको लिखना पड़े तो how you will be going through this particular thing, let us see। Now, basic principle of moving coil galvanometer.
देखो इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, व्हेनेवर एनी करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड दैट फील्स अ टॉर्क। बेसिक प्रिंसिपल, करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। उस टॉर्क के कारण उसमें रोटेशन आता है, रोटेशन मतलब डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन आप मेजर करके यू कैन हैव एक्सपोजर अबाउट द value of current which you are measuring. Now, construction में the very first thing is radial pole pieces producing radial, concave pole pieces producing radial field. The second thing is PQRS, rectangular coil. PQRS, rectangular coil having n number of turns and winded on a coaxial core made of highly permeable material. It's okay. इस कोर का एक और बेनिफिट आपको बताया था कि जो कोर है एक तो मैग्नेटिक लाइंस को कंसंट्रेट कर देती है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है ओके उसको और ज्यादा इफेक्टिव बनाती है। अदर बेनिफिट ऑफ इट इज ये रेडियल नेचर ऑफ फील्ड जो है ना उसको और इंप्रूव करती है, ठीक है, और ज्यादा इंप्रूव करती है क्योंकि लाइंस को कंसंट्रेट कर रही है, ठीक है, ओके। उसके बाद आफ्टर दैट वी हैव टू ends of the coil, one end fixed with phosphor bronze strip, ठीक है, and another end fixed at the bottom using this curl so that the coil is free to rotate around this axis, ठीक है, and a mirror M is attached at the joint of the strip and the rectangular coil। आराम से इसको पॉज करके रीड करें, ठीक है। स्ट्रिप वन एंड ऑफ द कॉइल के साथ जुड़ा हुआ है ओके और फाइनली वो गैल्वेनोमीटर का एक टर्मिनल बनाता है। मिरर M इज प्लेस्ड एट द जॉइंट ऑफ कॉइल एंड स्ट्रिप। इट्स फाइन। अब जो लोअर एंड ऑफ द वायर है वो देखो कहां पे लगा। लोअर एंड ऑफ द वायर जो कॉइल बना रही है, ठीक है, उसको बेस के साथ फिक्स कर दिया सो दैट ये वाला पॉइंट एंड स्ट्रिप दोनों एक एक्सिस बना रहे हैं, ठीक है ना, फॉर द रोटेशन ऑफ द कॉइल, ठीक है। और ये जो एंड है दिस इज मेकिंग अनदर टर्मिनल ऑफ द गैल्वेनोमीटर। So this is all about construction. Now theory and working. See, theory and working. जब आप इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस करंट अप्लाई करते हो क्या होगा, व्हाट विल बी हैपनिंग। करंट अप्लाई करने के कारण इस कॉइल में टॉर्क बनेगा। कितना टॉर्क बनेगा, फील्ड कैसा है, रेडियल फील्ड होगा तो प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड एंगल कितना बनाएंगे, थीटा इज इक्वल टू 0। देयरफॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल प्रोड्यूस्ड बाय द करंट will be equal to tau is equal to n I b a cos of theta is equal to 0 degree. So torque produced will be n I b a. This will be the value of torque जो coil को rotate, when the coil will be rotated, जब ये coil rotate करेगा, जब ये कॉइल रोटेट करेगा व्हाट विल बी हैपनिंग, देखो ध्यान से, एज द कॉइल विल बी रोटेटेड दिस डिफॉर्मेशंस विल बी प्रोड्यूस्ड इन द फॉस्फोर ब्रॉन्ज। ये टॉर्क इसको डिफॉर्म करेगा, डिफॉर्मेशन के कारण उसमें रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा। कॉइल रोटेट हुआ, कॉइल रोटेट होने के कारण ट्विस्ट बनेगा स्ट्रिप के अंदर, डिफॉर्मेशन। इफ फाई इज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस, तो फाई ही उसके अंदर ट्विस्ट बनेगा, तो फिर रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिप। जो रिस्टोरिंग टॉर्क है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्विस्ट होगा, तो प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में लेके आए तो ये रिस्टोरिंग कांस्टेंट आ गया। दिस के इज
restoring constant. Restoring constant of split. It's okay? ठीक है. अब जो फाइट है that is between the torque produced by the current and the restoring torque. ठीक है. ओके. नाउ जिस पर्टिकुलर डिफ्लेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंगली टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द करंट विल बी इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क, उस पर्टिकुलर डिफ्लेक्शन के ऊपर जाके आपका जो कॉइल है स्टेबलाइज कर जाएगा. तो जो आपका कॉइल है वो उतना डिफ्लेक्शन बनाएगा व्हेन टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द करंट एंड रिस्टोरिंग टॉर्क दोनों क्या कर जाए, बैलेंस कर जाए. डाल दो वैल्यूज दोनों का. टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कितना है, एन आई बी ए. रिस्टोरिंग टॉर्क ए इंटू फाई इज द डिफ्लेक्शन, वो विल बी इक्वल. तो फाई डिफ्लेक्शन के ऊपर स्टेबलाइज हो गई. ठीक है. और वो फाई डिफ्लेक्शन आप स्केल से या फिर यूजिंग मिरर मेजर कर सकते हैं. ठीक है. अब फाई करंट का वैल्यू आ गया आपके पास. करंट इज इक्वल टू के ओवर एन बी ए इंटू फाई. के कांस्टेंट, पर्टिकुलर मटेरियल यूज किया उसके लिए के का वैल्यू विल बी फिक्स. नंबर ऑफ टर्म फिक्स, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन फिक्स, एरिया ऑफ द कॉइल फिक्स. सो दिस ऑल विल बी मेकिंग अ कांस्टेंट. उस कांस्टेंट को डिफ्लेक्शन से मल्टीप्लाई किया, वी विल बी गेटिंग अ वैल्यू ऑफ करंट एंड द करंट इज मेजर्ड. Current is measured. Now, this K over NBA, K over NBA, they all are constant. So these all together they make a new constant G. This is called as galvanometer constant. It's okay. So placing the value, okay, in terms of galvanometer, I can write the current is equal to G for any galvanometer. This galvanometer constant has the fixed value depending on K and BA deflection. This is your current, okay, जो आप measure करने वाले हैं, and that is measured. It's okay. Now from here you can see that current and deflection both are directly proportional to each other. जो इनिशियली आपको बताया गया, समझ में आया? Mean more current will be producing more deflection, lesser current will be producing lesser deflection. Now, अब आपका गैल्वेनोमीटर कितना सेंसिटिव है उसको डिफाइन करने के लिए, उसकी सेंसिटिविटी को चेक करने के लिए डिफाइन अ न्यू वेरिएबल दैट इज करंट सेंसिटिविटी. ठीक है. करंट सेंसिटिविटी को डिफाइन कैसे किया जाता है? करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, एनी गैल्वेनोमीटर is equal to deflection produced in the galvanometer per unit current. Mean unit current उसमें कितना डिफ्लेक्शन बना रहा है, that defines the current sensitivity of the galvanometer. Like this your current sensitivity is defined. It's okay. Now if you go back to equation जो हमने मेजरमेंट के लिए बनाया था फाइन गैल्वेनोमीटर वाला, तो इक्वेशन क्या था? इक्वेशन वाज I is equal to K N B A into phi. This implies your current sensitivity is equal to, देखो current sensitivity is deflection per unit current. तो यहां से आप डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट के लिए इक्वेशन जनरेट कर सकते हो. डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट विल बी एन बी ए बाय एन बी ए बाय के. दिस डिफाइंस द करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी. मीन इफ आई वांट टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल टू बी इंक्रीज, बी इज टू बी इंक्रीज, ए इज टू बी इंक्रीज, E is to be reduced. बट इनकी वैल्यूज हम ऐसा नहीं कि कुछ भी इंक्रीज कर. अब देखो n को अगर इंक्रीज करना पड़ता
एन को इंक्रीज करेंगे तो बल्क बढ़ाएगा कि नहीं? कॉइल का बल्क बढ़ेगा, कॉइल का बल्क बढ़ेगा तो द इक्विपमेंट विल बिकम बल्की। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे, वायर लंबा यूज करना पड़ेगा। ओके, वायर लंबा यूज करेंगे, वायर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ओके, मैग्नेटिक फील्ड अगर बिग करना है मतलब एन का वैल्यू कैन बी इंक्रीज टू सम पर्टिकुलर एक्सटेंट। अगर हम बी का वैल्यू इंक्रीज करना चाहें तो हमें पोल पीसेस बिग लेने पड़ेंगे। पोल पीसेस बिग लेने पड़ेंगे मतलब बल्कि इक्विपमेंट, एन एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, पोर्टेबल नहीं होगा। एरिया ऑफ द कॉइल, अगर एरिया ऑफ द कॉइल बढ़ाना है तो बट ऑब्वियस पोल पीसेस को बड़ा स्पेस उसको देना पड़ेगा, तो पोल पीसेस भी बड़े होने चाहिए। बड़ी कॉइल ज्यादा वायर, तो इस तरह से एन बी ए इनका वैल्यू किसी पर्टिकुलर रेंज तक ही इंक्रीज किया जा सकता है। आप के का वैल्यू ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। के को आप बहुत ज्यादा बढ़ा भी नहीं सकते, क्योंकि अगर नहीं, के को आप बहुत ज्यादा कम भी नहीं कर सकते। सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए इसको कम करना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि अगर हम के का वैल्यू कम करते जाएं एट वेरी लो वैल्यू ऑफ के, व्हेन आपको सेंसिटिविटी लग रहा है कि मैक्सिमम होगा, आपका जो डिवाइस होगा उसकी जो रिस्टोरिंगनेस है वो कम से कम हो जाएगी। क्यों? डिवाइस बहुत लेजी हो जाएगा। आपने आज एक करंट मेजर कर लिया, ओके, शायद दोबारा से उस करंट की जो डिफ्लेक्शन बनी थी उस डिफ्लेक्शन से जीरो तक आने के लिए उसको बहुत लॉन्ग टाइम लग जाए, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, अगर डिवाइस लेजी हो गया तो। अगर जीरो तक आने में उतना टाइम लगेगा मतलब नेक्स्ट रीडिंग के लिए आपका डिवाइस कितने टाइम में रेडी होगा? मतलब के का वैल्यू अप्रोप्रिएटली इज टू बी एन बी एंड के, फाइन। इनका अप्रोप्रिएटली वैल्यू, ठीक है ना, इंक्रीज डिक्रीज किया जा सकता है। तो सेंसिटिविटी का एक पर्टिकुलर रेंज होगा। समझ में आया? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब करंट सेंसिटिविटी की अगर यूनिट की बात करूं तो क्या होंगे? यूनिट विल बी, इसका रेडियन होगा, इसका एम्पियर, रेडियन पर एम्पियर। नाउ वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है। वोल्टेज सेंसिटिविटी हम कैसे डिफाइन करते हैं? डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। voltage sensitivity is deflection produced per unit the potential difference applied across the terminal। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट बनाएगा, करंट उसमें डिफ्लेक्शन बनाएगा। कितना करंट बनेगा वो उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू डिफाइन करेगी, ठीक है ना, जो कॉइल का रेजिस्टेंस वैल्यू। दिस इज हाउ योर वोल्टेज सेंसिटिविटी इज डिफाइंड, ठीक है। अब देखो, वोल्टेज सेंसिटिविटी इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट, यही है। वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना करंट बनाएगा? इफ आर इज रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल तो आई करंट V इज इक्वल टू आई आर, वेयर आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द, ठीक है, ओके। तो यहां पे आप 1/R और ये 5/I का ऑलरेडी आप वैल्यू निकाल चुके हैं, तो यू कैन राइट दिस वोल्टेज सेंसिटिविटी एज 1/R, ओके, इनटू NBA/K। 5/I का वैल्यू डाल रहा हूं, NBA/K, and this NBA/K is current sensitivity. So this implies voltage sensitivity is equal to 1/R times current sensitivity। इन जनरल बच्चे गलती करते हैं, इस रिलेशन को अप्लाई करते हैं। देखो V is equal to IR होता है ना, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी बाय R। तो ये रिलेशन आपको वोल्टेज सेंसिटिविटी करंट सेंसिटिविटी के टर्म में दे रहा है। ये वोल्टेज सेंसिटिविटी यू आर गेटिंग इन टर्म्स ऑफ number of turns, magnetic field induction, area of the coil, and restoring constant and resistance of the coil. It's okay. So hope you have understood this particular. Now, moving coil galvanometer है ना, किस पर्पस के लिए यूज करेंगे? This is used for measuring small values of current. Okay, used for measuring small values of current. अगर आपको थोड़ा सा और इसका यूटिलिटी बताऊं, देखो हमारे पास स्टिल टुडे कोई और मीटर अवेलेबल ही नहीं। करंट मेजर करने के लिए, हाई वैल्यू ऑफ करंट मेजर करने के लिए वी यूज एमीटर,
एंड हाई वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए भी यूज वोल्टमीटर। तो जितने भी वोल्टमीटर बनते हैं, जितने भी एमीटर बनते हैं, वो सारे के सारे किससे बनते हैं? गैल्वेनोमीटर। तो इन नेक्स्ट लेक्चर्स वी विल बी कंसंट्रेटिंग इन कन्वर्जन ऑफ galvanometer into ammeter and voltmeter. You try understanding this particular thing. Okay, बहुत सीक्वेंस में आप लोगों को बताया गया है. After going through this particular video, go through book, go through content provided in the book. Okay, and if still there is any query, okay, let me know about. We will be taking that particular thing in the next lecture. Okay, till then, thank you. Have a nice day.